How are you? I hope all are you safe at your home, but your study is going on. You are not coming to the school, but also your study is going on. And today your topic is figure of speech. Last two periods I already explained the figure of speech. Up to 8th standard you know the parts of speech, how we use the parts of speech in the sentence. But figure of speech related only the poem. When you have to write the paragraph, a story, you can continue. First paragraph is there. Up to paragraph you can write first line, second line, third line, fourth line, fifth line. But when you have to write the poem, that time you should be rhythm is there. The poem related the figure of speech only the related of the poem. So be careful and you have to learn each and every figure of speech. We already discussed last class 11 and today is up from 12. 26 figure of speech. So we can start the from 12. The 12th number is there. Irony. The real meaning is exactly the opposite of that, which is literally conveyed for there. तो ये जो poem होता है, poem में poet, when you have to write the poet write the poem, तो obviously rhythm is there. तो कभी कभी क्या होता है उसमें मीनिंग ऑपोजिट आता है, लेकिन पोएम में एक कंटिन्यू होता है था रिदम विदाउट रिदम. जैसे हिंदी में बोलते हैं छंद, छंद बिना कोई कविता नहीं होता है, छंद बिना कविता नहीं होता है. आप कहानी लिखने जाओ, अगर आपके इट इज नॉट कंप्लीट इन दिस फर्स्ट पेज तो यू कैन कंटिन्यू राइट डाउन वीडियो एंड कंटिन्यू इन सेकंड पेज, बट पोएम यू शुड बी स्टॉप देयर, अदरवाइज यू हैव टू राइट नेक्स्ट पेज, स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट पेज, beginning of the poet. Poem obviously you have to maintain when you have seen in your notebook or book. So poem is very necessary for your exam, for your class. So all are figure of speech related with the poem. So this is the opposite of that which is literally conveyed. So I already explained on yesterday also. Then you have to know about what is the literature. So what is the literature, what is the language, you know, because in your two books are there, Behind and Moments. Behind one prose and one poem is there. But each and every prose chapter, one prose and one poem. And one poem compulsory, it is related with the figure of speech. The figure of speech, this one like that. They say on the pedestal this one. We have read that the road not taken. The road not taken. This poem also mentioned in your class. I already explained, you know that one. The poet thought what road I will be choose, because there are two roads. When you have to go come out from the school, you have to stand in front of the gate. That time two roads are there, right side and left side. Meaning is there, left side and right side, two roads are there. Which road you choose? Which road? Because you should be choose that road which is comfortable for your journey. There is no crowd, there is no crowd and what are there, and jam, traffic jam, because at present each and everybody's house has minimum 2 to 3 wheels. So when you have to go, that time you should be choose which road is comfortable for you, not others. So that is the poet already written in this poem. And it is not only road, rasta ko nahi, rasta, that is the aim. What is the ambition in your life? You choose with that one. आपके पापा अगर बोले आपको इंजीनियर बनना है, but you have no idea about the science, it is not possible by you. You don't like, but by force आप करने जाओगे तो it is not easy for you. So you should be choose the road which is like you, like the poet. Okay? So obviously this one is. Next, epigram. Every pointed scene which is introduced with an aim to excite, surprise, and attract attention. So obviously I already told you the road not taken. This poem also related this poem. Epigram. So when you have to choose the road which is crowdless, which is peaceful road, which is comfortable, which is near of your house, okay, so then you have to go and choose that way. So that is easy for you. तो रास्ता अगर हम लोग
जिंदगी में हमारा उद्देश्य क्या है। आपको 9th-10th में पढ़ना चालू करो और तभी पढ़ो। आपके पापा बोला नहीं आपको तो डॉक्टर बनना है, लेकिन आप डॉक्टर बनना है, आपका थोड़ा सा खून देखने से आपको उल्टी आ जाता है, खून देखने से आपको चक्कर आ जाता है। हाउ इज इट पॉसिबल बाई यू टू मेक ए डॉक्टर? आपको पेशेंट देखना है। तो ये जो चीज़ होता है, ये रोड यू हैव टू मेंटेन एंड यू हैव टू चूज व्हेन यू आर 9th or 10th standard. तो दैट इज योर एम। तो दिस इज द एपिग्राम। एपिग्राम इज लाइक दैट, इट इंट्रोड्यूस विथ योर एम। तो दिस इज ऑल्सो पोएम। तो द पोएम रिलेटेड दिस ऑल आर फिगर ऑफ स्पीच। देन metonymy, an attribute or a thing is represented by another closely related to it. तो आपको कुछ अच्छा लगता है, you have to choose. आपको लगता है जी he is very comfortable with me, you should be make a friend with him. अगर लगता है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं तो आप उसको दोस्त बना सकते हो, but you have to know about him first. समझ में आया? तो पोएम में जो होता है, पोएम ऑलवेज ट्राई टू चूज द राइट वे। द रोड नॉट टेकन नॉट ओनली वन पोएम, सो मेनी पोएम यू कैन फाइंड आउट। रेन ऑफ द रूफ एंड रेन ऑफ द रूफ ऑल्सो। छत में तो बारिश सबकी होती है, लेकिन वाई द पोएट थिंक अबाउट हिज मदर। रेन ऑफ द रूफ जो पोएम है उसमें वो अपने मम्मी के बारे में क्यों सोचता है? बिकॉज ही वॉज लाइंग ऑन द बेड एंड दैट टाइम ही रिमेंबर्ड हिज मदर। उनकी मम्मी के बारे में सोच रहे हैं। क्यों? बिकॉज दैट टाइम ही वॉज अलोन एंड वो अभी किसी के बारे में नहीं सोच रहा था उसको। एंड हाउ यू एंजॉय योर रेन, हाउ ही एंजॉय रेन, हाउ आई एंजॉय रेन, दैट इज डिफरेंट। सबकी रेन बड़ा पसंद नहीं होती है। किसी किसी को रेन में भीगना, बारिश में भीगना अच्छा लगता है, किसी किसी को नहीं लगता है। किसी को ठंडी अच्छी लगती है तो किसी को गर्मी अच्छी लगती है। तो इट इज़ डिफरेंस ऑफ आवर मेंटेलिटी। तो पोएम जब भी होता है, पोएम में रिदम होता है तो रिदम के हिसाब से भी होता है। जैसे एक जरूरी आप लोग बचपन में पढ़े जैक एंड जील पॉइंट अप टू द हिल। तो जील और हिल में जो डिफरेंस है, दिस इज द रिदम, दिस इज द रिदम। वी आर लर्न द पोएम फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकेंड स्टैंडर्ड, but when you have to come to 9th standard, then you find out how and which type of poem this one. तब आपकी पोएम की थोड़ा अलग हो जाता है। पोएम आपकी फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में छंदो आएगा, लेकिन वो थर्ड लाइन नहीं होगा, फोर्थ पर फिफ्थ लाइन में आ जाएगा। समझ में आया? तो ये जो होता है इसको बोला जाता है आपका एपिग्राम। Then an attribute or a thing is represented by another closely related. जब हम किसी के साथ रिलेशन में आते हैं, किसी के साथ रिलेटेड होते हैं, तो उसकी मेंटेलिटी हमारी मेंटेलिटी मिलना जरूरी है। ऑब्वियसली आपकी पेरेंट्स के साथ आपकी जो मेंटेलिटी है बॉन्डिंग है, इट इज़ गुड फॉर यू। आपकी बाहर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, यू हैव टू शेयर विथ योर पेरेंट्स। मे बी दे विल बी गिव यू ओपिनियन, देयर ओपिनियन। आप फ्रेंड चूज करो, आपकी पेरेंट्स के साथ आप उसको शेयर करो। You have to share with your parents. Otherwise, maybe आपकी वो दोस्त बाद में आपके साथ कुछ करे, तो you should be talk with your parents. Whatever you have to do in whole day alone. मुझे मालूम है कभी कभी किसी के पापा बहुत गुस्सा वाले होता है, तो कभी किसी की मम्मी मानने के तैयार रहते हैं, लेकिन आपके फ्रेंड जिसके साथ जब ज़्यादा मिलता है, you share with him or her. उनके साथ शेयर करो सब, ठीक है? That is the relation. तो रिलेशन खाली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे इनमें नहीं होता है, फ्रेंड से भी होता है। आपकी बहुत क्लास में बहुत बच्चे हैं, इसके मतलब ये नहीं कि बहुत बच्चे में एक ही यूनिटी है। उसमें देखो 4-4, 5-5, 6-6 के अलग ग्रुप बन जाता है। क्यों? उसकी बॉन्डिंग अलग होता है। आप कहीं पर बाहर जा रहे हो, आपकी कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर में भी देखो कोई है जो आपका बहुत नज़दीक होता है, कोई कजिन ब्रदर आपको बहुत दूर के होते हैं, लगता है उसके साथ मिल लिया बस, दैट्स इट। तो ये जो होता है रिलेशन, ये हमारे समझ में आना चाहिए, हमारे मन से होना चाहिए। देन वी हैव टू शेयर विथ आवर each feeling with him or her or them. Okay? The beneath all uniforms is single body breath. Obviously, breath is compulsory and breath is very necessary for our life. Without breath we cannot live. आपको मालूम है, अगर आज हमारे पास ब्रीथ अब नहीं लिया था मीन्स
लास्ट। तो जब ब्रीथ होता है, सांस लेते हो, सांस आप लेते हो तो कौन सा सांस लेते हो? जो आप लेते हो सॉलिड वाला लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। लाइक दैट द ये जो ट्रीज होता है दे नीड द कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे प्रिपेयर देयर फूड। जब वो लोग खाना बनाते हैं तब वो लोग को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होता है, दे नीड द ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं एंड वी नीड द ऑक्सीजन, जिसके कारण एटमोस्फेयर में हम लोग इतना ह्यूमन बींग्स होने के बाद भी इतने एटमोस्फेयर में इतने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, बिकॉज द जो ट्रीज होता है दे नीड द कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे प्रिपेयर द फूड प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। आपको ये मालूम है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से जाता है तो इसी का किसका तो काम आता है। अब वो लोग जो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं वो हमारा काम आता है। तो ये ब्रीदिंग जो सिस्टम है हमारे साथ किसका है? ट्रीज का है। दैट इज द रिदम ऑफ द पोएम। पोएम का मतलब करिए 4 लाइन की कविता, नो। पोएम के मतलब आप जो बात करते हो वो भी अगर रिदम में हो तो दैट इज ऑल्सो पोएम। ओके, देन सिंगल रोज a part stands for the whole and the whole stands for a part of created poetic effect. Obviously एक शब्द लिखे, when you have to say one word's meaning is minimum 3 or 4 lines. But when हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना राइट आंसर इन 1 word, उसमें एक सेंटेंस बड़ा सा दिया हुआ है, आपको आंसर लिखने पड़ेगा। इट इज स्टार्ट फ्रॉम 9th standard, you know that one, I already given you in worksheet number 1। तो वंस जो होता है स्टार्ट 1 word में लिखना है। आपकी बड़ा सा इतना सारा में दिया सेंटेंस में दिया, आपको उसको इसमें लिखना है 1 word में लिखना है। अगर 1 word को दिया हुआ उसको एक्सप्लेन करना है तो दिस इज कॉल्ड द सिंगुलर। जैसे देयर हैंड्स आर आवर्स इन देयर लाइव्स विद इट, हम लोग पढ़ चुके हैं। वो लोग का हाथ जो है, फॉरेनर, हम देश में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, इंडिया में रहते हुए अगर फॉरेन के कपड़ा पहने, फॉरेन की स्टाइल ले तो ये क्या फॉरेनर बन गया? नो। फॉरेनर कब बनते हैं? जो फॉरेन में जाके उसका स्टाइल उधर ही करते हैं, वो इधर आके फॉरेनर नहीं बनेगा। हम जहाँ पर भी रहे वी आर ऑल्सो इंडियन, लेकिन हम क्या करते हैं? इसका नकल करते हैं। उधर इसका ड्रेस पहना है तो हमको भी ये ड्रेस पहनना है, तो इसका मतलब क्या फॉरेनर हो गया? All countries are not foreign, and all men are not foreign। सब देश फॉरेनर नहीं होता है और सब इंसान फॉरेनर नहीं होता है। आप अगर फॉरेनर हो तो फॉरेनर में दे ऑलवेज लिव टुगेदर सिंगल, दे वर्क हार्ड। तो आपके घर में उसके घर में एक ही फॉरेनर में जाओ, और फॉरेन में एक ही आदमी घर अकेला रहता है और वो अपना काम पूरा खुद करता है। लेकिन हम लोग जो भारत में रहते हैं हम एक साथ रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा जॉइंट फैमिली हो, हमारे मम्मी पापा साथ में हो, हमारे बच्चे साथ में हो, हमारे भाई बहन साथ में हो। तो हम क्या करते हैं? हम वी वांट टू लिव टुगेदर, ठीक है। उसमें कुछ एक्सेप्शनल होता है, भाई बहन अलग रहना चाहते हैं, मम्मी पापा अलग रहना चाहते हैं, कोई माँ शादी के बाद मम्मी पापा के साथ रहना नहीं चाहता है, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन मेन हमारा जो एज एन इंडियन हमारा जो बॉन्डिंग होता है वो है जॉइंट फैमिली। ये आप फॉरेन में नहीं देख सकते। दैट मीन्स ऑल कंट्रीज आर नॉट फॉरेन, आवर कंट्री और वी आर नॉट फॉरेनर। फॉरेनर के ड्रेस आप फॉरेन में एक बार घूमने गए और फॉरेन के ड्रेस इधर पहन के घूमोगे तो आपको शुरू में तो कोई भी आपको बोलेगा क्या है, चलो आप उधर से आकर तो गए, लेकिन इट नॉट शुड बी कंटिन्यू बिकॉज ऑल मेन आर नॉट फॉरेन। ओके, तो देन hyperbole, a statement is emphasized by overstatement, जैसे and this tune is headed on the distances। तो हमारा जो सर होता है, हमारे सर पे क्या सर दूसरी जगह चला जाता है? नो, आवर सर विद आवर हेड, हमारा जो हेड है वो हमारे पास है। आप लोग को मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ये आप आज कोई भी अमीर है वो बाद में गरीब हो सकता है, कई गरीब आज अमीर हो सकता है, लेकिन ओनली वन थिंग यू हैव कीप विथ यू, दैट इज योर एजुकेशन। एजुकेशन कभी कोई चोरी नहीं कर सकता, वहीं पर भी जब ये काम आएगा। अगर आज आपके पास बहुत पैसा है, मैं ये आज नहीं तो कल चला जाता है, हो सकता है मैं भी कभी किसी के पास पैसा नहीं था, वो हार्डवर्क में पैसा करके बहुत पैसा जमा कर सकते हैं। तो ये होता है
ठीक है ना। जिससे एग्जाम्पल वहीं पर 2001 में 26 जनवरी गुजरात में बचाव के जहाँ पर है वहीं पर एक भूकंप आया था, वो तेज भूकंप। जो भूकंप में बहुत सारे इंसान का 4-4, 5-5 बैंक में अकाउंट था, घर पे बहुत पैसा था, सोने गहना था, लेकिन सब कुछ चला गया। लेकिन उसमें 2-3 आदमी ऐसे थे जो बहुत विद्वान थे। एट प्रेजेंट वन मैन ऑल्सो देयर, ही इज वर्किंग एज ए टीचर इन द दिल्ली पब्लिक स्कूल एट दिल्ली। वहीं गुजरात से बाकी सबके खाने के लिए पड़ जाता था, क्योंकि उनके पास पैसा खाली था, दिमाग नहीं था। लेकिन उसमें एक आदमी के बहुत पढ़ाई लिखा था, दिमाग था, वो अभी एट प्रेजेंट दिल्ली में DPS में, दिल्ली पब्लिक स्कूल में सर्विस कर रहा है। तो कौन सा काम आया? पढ़ाई। ठीक है, तो ये जो है ये होता है अपना हाइपरबोला। तो जो डिस्टेंट हिल है पर्वत में सब चढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन कोशिश तो करते हैं, है ना। तो ये जो है आप इसको लर्न करोगे हाइपरबोला। ओके, तो जो फिगर ऑफ स्पीच ऑलरेडी वी हैव लर्न 11 एंड टुडे इज 12, 13, 14, 15, 16 एंड रिमेनिंग 10 विल बी कंटिन्यू नेक्स्ट। तो हम क्या करें इसको, इसके बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं। हाँ, चलो नेक्स्ट। पान यूज ऑफ द वर्ड व्हिच स्टेप अवे द हैविंग मोर देन वन मीनिंग एंड द क्रिएट्स ए ह्यूमरस इफेक्ट। तो यू नो द फिगर ऑफ स्पीच, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो फिगर ऑफ स्पीच रिलेटेड विद द poem. तो poem that means rhythm must be there. तो poem without rhythm you can't do any poem. But nowadays poem is different from before that. तो अभी जो poem होता है उसमें rhythm आते नहीं है। आप बोलोगे मैडम rhythm is not there because पहले होते थे हैं twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, तो R स्टार में मिक्स होता था, जैक एंड जिल में भी हिल एंड टिल में। लेकिन नाउ you will find out the poem in your book. Suppose rain of the road not taken. So you will find one there is not the same words meaning opposite like there. So but rhythm must be there in the end of the poem or middle of the poem. उसकी जो meaning है वो rhythm में होगा ही। So that is called the pan. So you are being a poet of consequence. That is the consequence. You are meaning one consequence. The poem must be there. Poem obviously related with the figure of speech. Figure of speech. The figure of speech related the poem is there. Otherwise it is not affected. So up to 8 standard parts of speech that is related of sentence. But figure of speech related of the poem and the mind of the poet. पोएट ने क्या बोलना चाहता उसकी मीनिंग रख के उन्होंने रिदम में पोएम बनाया। तो दैट इज कॉल्ड द फन। एक्सक्लेमेशन, ऑलरेडी यू हैव लर्न द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हेन वी हैव टू फील द फीलिंग फ्रॉम आवर हार्ट, दैट इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वी हैव टू यूज द एक्सक्लेमेटरी साइन। तो एक्सक्लेमेशन साइन इज मस्ट बी देयर एंड एक्सक्लेमेटरी साइन दैट मीन्स we have to use the exclamatory sign. So exclamation is there. So when we have to see the exclamation, that is the feeling from our heart. Suppose you have to know the hooray, we won the match. Hooray, we won the match. So hooray, that we have to use the exclamatory sign. Exclamatory sign that means we have to feeling from our heart. We don't touch. Hooray, we won the match. When you have to come to the school and you won the match, so you say hooray, मजा आ गया। तो you feeling that one, that is the feeling of your from your heart. Alas, he was dead. दुख की बात है, तो ये not touchable. That is the exclamation sentence also in the figure of speech. That is the exclamation. Use of exclamatory form of draw attention. तो आपकी कोई अंदर की जो बात होती है, जैसे आपकी फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, दैट इज कॉल्ड द एक्सप्रेशन। एंड वन साइन इज देयर, दैट इज द एक्सक्लेमेटरी साइन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज देयर, यू ऑलरेडी लर्न अप टू 8 स्टैंडर्ड। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दैट मीन्स इट इज द फीलिंग फ्रॉम आवर हार्ट। But in the figure of speech exclamation in the poem you can find out the with the sign of exclamatory. So obviously that is the exclamation sentence. And then हम लोग जा रहे हैं ओनोमेटा पढ़िए। यूज ऑफ वर्ड्स व्हिच प्रोड्यूस साउंड फॉर पोएटिक इफेक्ट। तो मैंने आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू,
जब हम लोग कोई पोएम पढ़ते हैं रिदिम में होता है। पहले दिन में हम लोग जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, तो उसके साथ वेंट अप द हिल, जिल और हिल, जिल और हिल में ये रहता था। लेकिन नाउ विच पोएम आर वी आर रीडिंग है, देयर मीनिंग इज द रिदम। जो रिदम में मीनिंग होता है वो होता है। अभी इसमें हम लोग को कुछ सेंटेंस जरूरी नहीं है जो ऊपर के फर्स्ट लाइन के साथ सेकंड लाइन की है मैचिंग होगा। इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट कंपल्सरी। तो यू हैव टू से जे व्हेन द पार्ट इज देयर, तो ऑब्वियसली इन द पोएम फिगर ऑफ स्पीच इज अफेक्टेड विद द पोएम, फिगर ऑफ स्पीच अफेक्टेड विद द पोएम। तो यू हैव टू से, यू कैन से जे मैडम आपने तो बोला था पोएम में पोएट नहीं होता, लेकिन बेटा पोएट की जो मीनिंग होती है, पोएम की जो इनर मीनिंग है, पोएट एक्सप्लेन इन दी पोएम, ठीक है। तो ऑब्वियसली वी हैव टू सी द एक्सक्लेमेटरी, तो एक्सक्लेमेटरी आल्सो देयर एंड देन ओनोमेटोपोएई, यूज ऑफ वर्ड्स विच प्रोड्यूस साउंड ऑफ पोएट्री। तो पोएट के दिमाग में जो साउंड आया, जो आवाज आता है, उसको हम लोग इफेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द पोएटिक इफेक्ट ऑफ साउंड। तो दिमाग कभी जो सोचते हैं, पहले ही बोली रोड नॉट टेकन, कभी की सोचना था टू साइड्स रोड्स आर देयर, व्हिच रोड्स ही विल बी choose, but it is not only poet, it is defect of your effect of your life also. You which poem, which road you will be choose. So that means not only the road, that is the aim of your life. So which road, which occupation you will be choose. I hope you will be choose that road, or instead of the road we can say the aim. Aim, that means you have to choose that road, but that aim that is suitable for you, not for others. Okay, so that is the suddenly the baby begins to cry. How? Why? Something is there. अचानक बच्चे रोना चालू कर दिया, क्यों रोना चालू कर दिया? Why? Some reasons must be there. Okay, तो this is called the onomatopoeia. Okay, so now today we have learned 9 or 9 or 8 to 9 figure of speech, and remaining figure of speech on next class. So